ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 19 دسمبر کا نوٹیفیکیشن اور 27 دسمبر کا حکم بھی کل عدم قرار دے دیا۔ مختصر تحریری فیصلہ جاری، کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کل انتخابات یقینی بنانے سے متعلق الیکشن کمیشن کی معاونت کرے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستیں منظور کر لی۔ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر مگر قابل عمل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 سے 5 ماہ لگیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے اسلام آباد میں پہلے سے ہی تھریٹ الرٹ ہیں، 1000 سے زائد پولنگ سٹیشنز ہیں، اتنی جلدی سیکورٹی انتظامات کرنا ممکن نہیں۔ سر آنکھوں پہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے۔ کل الیکشن کروانا نہ تو الیکشن کمیشن کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی ہمارے لیے کہ ہم 1000 پولنگ اسٹیشن ہے فوری طور پہ سیکورٹی اور دوسرے ارینجمنٹس کر سکیں۔ اسلام آباد میں تو پہلے ہی تھریٹ الرٹ ہے، الیکشن میں تو پھر سینکڑوں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دہشت گرد جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال سے تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن دوبارہ شیڈول جاری کرتا ہے تو ایک سفیشینٹ ٹائم ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کے انتظامات جو ہے کیے جا سکیں گے۔ یہ میرا خیال ہے 4 سے 5 ماہ لگیں گے اس میں۔ نہیں، جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہوگا، ان کے لیے تو 8 سے 10 ماہ چاہیے۔ اسلام آباد میں کل بلدیاتی انتخابات ہر حال میں کرانا ہوں گے۔ الیکشن نہ کرائے تو توہین عدالت کی درخواست کریں گے۔ آئین میں عدالتی فیصلے کے خلاف جانے کی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ پاکستان بہت خطرناک ملک ہے، یہ بیان دینے سے پہلے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ الیکشن کروانے پڑیں گے نا، آئین میں قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام تو بڑا آسان کر دیا ہے، 125 یونین کونسلیں بنانے کا فیصلہ ہے وہ بھی کل عدم کر دیا ہے۔ انتظامات تو پہلے سے ہی ہوئے ہیں، ڈیوٹیز ایلوکیٹڈ ہیں۔ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اتنا خطرناک ملک ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بیان دینے سے پہلے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ توہین عدالت کی طرف ہم جائیں گے، رات کو بینچ بنتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا تھوڑی بہت عزت رہنے دیں اداروں کی۔ عام انتخابات کا فیصلہ رانا ثناء اللہ نے نہیں کرنا، وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اپریل میں زیادہ سے زیادہ عام انتخابات میں جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن کے متعلقہ حکام اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ کورٹ آرڈر معطل ہوئے بغیر الیکشن نہ ہونا توہین عدالت ہوگی۔ مزید بتائیں گے، لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے راشد حبیب۔ راشد، عدالت کھل گئی ہے؟ جی، اس وقت بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ عدالت جو میں صرف ایک کاپی برانچ کھلی تھی، وہ کاپی جاری کرنے کے بعد اس کا عملہ روانہ ہو گیا اور صرف ایک انفارمیشن برانچ کھلی دی ہے، جبکہ انسٹیٹیوشن برانچ جو اپیل وصول کرتی ہے اور رجسٹرار آفس جس کو فکس کرنا ہے وہ بند ہیں، اور تقریباً یعنی باقی تمام ہائی کورٹ بند ہے، ججز بھی نہیں ہیں۔ تاہم جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم یہاں موجود ہے وہ اپیل تیار کر رہے ہیں، لیکن ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ آفیسز بند ہیں تو رات کو تو اپیل دائر ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، یہ صبح ہی دائر ہو سکتی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے صبح الیکشن کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ اگر یہ اپیل دائر نہیں ہوتی یا آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی بھی بنے گی، جس کا پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے کہ وہ پھر توہین عدالت کی درخواست دیں گے، جبکہ دوسری جانب حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ہی کا یہ موقف ہے کہ صبح الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ فی الحال جو ہے بیٹھے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب بھی اور لیگل ٹیم۔ اچھا راشد، یہ بتائیے الیکشن کمیشن حکام تو یہاں پر موجود ہیں، آ گئے ہیں، عدالتی عملہ یہاں پر آئے گا؟ جی، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کیونکہ عدالتی عملہ ابھی تک تو نہیں آیا، اور جو موجود تھا کاپی برانچ کا عملہ وہ کاپی مصدقہ نقل جاری کرنے کے بعد روانہ ہو گیا، اور غالباً مصدقہ نقل جاری کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کیونکہ صرف ایک رات بیچ میں ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز نہ ہو کہ ان کے پاس فیصلے کی مصدقہ کاپی نہیں تھی، وہ بھی انہیں فراہم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد تو اب ان پر وہ لازم ہو گیا ہے کہ صبح الیکشن تو اب کروائیں۔ یہ اپیل کب دائر ہوگی راشد؟ اپیل تیار ہے، اور اپیل تیار ہے دونوں طرف سے، اور اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک رات میں الیکشن کرانا ممکن نہیں، سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں، سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں، عملہ جو ہے وہ
स्कूलों का, टीचर्स का वो छुट्टियों पर है, जिसको एक रात में बुलाना मुमकिन नहीं, इसलिए सिंगल बेंच का ऑर्डर सस्पेंड किया जाए और हुक्म मुतनाई जारी करके मुकदमे की समाअत की जाए। लेकिन ये अपील दायर होने का फिलहाल अभी तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो अभी इम्कान नजर नहीं आ रहा, यानी ये अपील सुबह दायर होगी फिर राशिद? जी, ये मुमकिन है कि सुबह 8 बजे से पहले या 8 बजे के बाद फौरी दायर की जाए और फौरी तौर पर उसकी समाअत की इस्तदा की जाए। बहुत शुक्रिया आपका राशिद हबीब, हमें इस मुतालिक आगाह कर। जो काम मुमकिन नहीं उसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। आर्टिकल 4 मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करने का फैसला किया है, जिस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन इतने मुख्तसर नोटिस पर कराना मुमकिन नहीं। फैसला कर रही है कि हम इसमें इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करेंगे, उस पर काम जारी है। आज किसी वक्त या सुबह इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो सकती है। इलेक्शन इतने शॉर्ट नोटिस में जितनी प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं उस हवाले से शायद पॉसिबल ही ना हो। अल्टीमेटली लेट्स सी इलेक्शन कमीशन कैसे इसको प्रोसीड करता है। हुकूमत ने तो इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं। जो काम हो सकता हो प्रैक्टिकली वही किया जा सकता है। आर्टिकल 4 है कि किसी को ऐसा काम नहीं कहा जा सकता जो प्रैक्टिकली हो ही ना सकता। इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले से मिला हुआ है, हमेशा चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसला करता है। अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले मुस्तरद कर देती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद के अवाम के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा, कल बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। इस्लामाबाद की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। उनको एक ऐसा फैसला मिला है अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सके। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है। अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। करप्ट टोला इलेक्शन से भागता है कि सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों की जमीन खरीद। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि किसी को कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को दोबारा होगा। गर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। असूर को कुचलने के लिए कोई दकीका प्रोग्राम नहीं करेंगे। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शुरा का अज़्म। एलामिया में कहा गया, शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की का निहायत जुर्रत और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में वफाकी वुज़रा, सर्विसेज चीफ, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। मुल्क की मईशत, अमन अमान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तमाम चैलेंजेस का तफसील से जायजा लिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने शुरा को मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली और इक़दामात पर शुरा को ब्रीफ किया। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी की हालिया लहर के अवामिल सद्देबाब के इक़दामात से आगाह किया गया। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर ने अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शोहदा के अहले खाने से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को दोबारा होगा। शुरा की जानिब से सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे।
वफाकी दारुल-हुकूमत के सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्की शहरी आजादाना तौर पर नकलो हरकत कर सकते हैं। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। मीटिंग में 100 से ज्यादा गैर मुल्की सफीरों और डिप्लोमेट्स ने शिरकत की। सेक्रेटरी खारिजा, सेक्रेटरी दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम ने इजलास को ब्रीफिंग दी। IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की साबिक वजीर और MPA समसाम अली बुखारी से मुलाकात। वज़ीर आला का कहना था, मुखालिफिन काम के बजाय ड्रामे करते रहे। हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की भी तौफीक दी है। पाकिस्तान में पहली बार खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। 1 अरब रुपए मुख्तस करती है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा आफरीदी का निकाह नसीर नासिर से हो गया। कराची में होने वाली तकरीब में आफरीदी के दूसरे दामाद और कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने भी शिरकत की। तकरीब में रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी शरीक हुए। अक्सा आफरीदी का हक महर 131 तोला चांदी मुकर्रर किया गया है, जिसकी मालियत 2,60,000 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा बनती है। अक्सा शाहिद अफरीदी बिन्त साहिबजादा मोहम्मद शाहिद अफरीदी के साथ बाइवज महर मार फातमी 131 तोला चांदी, जिसकी आज की कीमत 2,60,952 रुपए है, इन गवाहों के सामने किया। क्या आपने अक्सा शाहिद अफरीदी बिन्त साहिबजादा मोहम्मद शाहिद अफरीदी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। माशाअल्लाह। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और कराची का मसरूफ यूनिवर्सिटी रोड क्या 2 साल तक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहेगा? रेड लाइन बस सर्विस मंसूबा शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया है। 200 फीट की रोड 5 फीट रह गए। कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। तरक्याती मंसूबों की वजह से गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में मिनटों का सफर घंटों का हो गया। सारी सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। शहरियों को सफरी सहूलत फराहम करने के लिए रेड लाइन बस मंसूबे की तामीरात के काम का आगाज तो कर दिया गया है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ 200 फीट चौड़े रोड को 5 फीट का कर दिया है। घंटों ट्रैफिक जाम होता है। मुख्तलिफ मकामात पर दिन और रात तामीराती काम तो हो रहा है, लेकिन मुतबादिल रूट्स के हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं किए। 25 मिनट के सफर के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम के दौरान बिल आखिर हम पहुंचे हैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद के उस मुकाम पर जहां अभी भी तामीराती काम जारी है। इस मुकाम पे भी 200 फीट चौड़े रोड को तंग कर 3 फीट कर दिया है, जहां ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। लेके जाएंगे यहां से तीसरे मुकाम पर, जो कि 2 किलोमीटर का सफर बनता है। वो तीसरा मुकाम है जहां रेड लाइन बस मंसूबे की तामीरात का काम जारी है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। ये रेड लाइन बस मंसूबा 2 साल तक जारी रहेगा। ताहम मुतबादिल रूट्स न होने के बायस शहरी शिकवा करते नजर आते हैं कि 2 साल तक हम इसी तरह बदतरीन ट्रैफिक जाम के दौरान ही फंसे रहेंगे। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी रोड के मुतबादिल रूट्स की क्या सूरत हाल है। यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम से बचने के लिए शहरी रुख करते हैं गुलिस्तान जौहर का, जहां गुज़िश्ता कई माह से अंडरपास की तामीरात का काम जारी है। यहां भी शहरियों को घंटों ट्रैफिक जाम जैसे इम्तिहान को अबूर करके निकलना पड़ता है। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।